الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة رواه مسلم. سب سے پہلے پہلو اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام بندوں کو اس دنیا سے محفوظ کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اس کے بعد تمام پیغمبروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. سبھی کا اللہم صلی علیہ اللہم بارک. محترم ناظرین اور محترم سامعین کرام، پیارے بچوں، آج کے اس جمعے کے دن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے جب ہمارے نامۂ اعمال جب دیا جائے گا، جب ہمارے ہاتھوں پر ہم اپنے ہی کرتوتوں کا سجا رجسٹر جب ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا تب ہمارا کیا حال ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے کہ آخر اس
انسان کا حال کیسا ہوگا روز قیامت کے دن، جس دن اللہ تبارک و تعالی ہر اپنے بندوں کو، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیکدار ہو، ہر انسان کو اپنے کرتوتوں کی سزا القیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے سامنے، اس کے ہاتھ میں رجسٹر و نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، اور قیامت جب قائم ہو جائے گی، جب دنیا کے اندر آ جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ حشر کے اندر، حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا، تو اللہ رب العالمین نیکی و بدی، یعنی گناہ ہو یا نیک ہو، ان دونوں کی ترازو ایک قائم کرے گا۔ ایک وزندائی، جسے ہم وزندائی کہتے ہیں، وہ ترازو کھڑا کرے گا اور ناپے گا کہ کس انسان کا گناہ کا پلہ بھاری ہے اور کس انسان کا نیکی کا پلہ بھاری ہے۔ جب ترازو قائم کر دے گا مرنے کے بعد حشر کے میدان میں، حساب و کتاب کے دن میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 47 کے اندر فرما رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں قیامت کے دن ایک انصاف کا ترازو لاؤں گا، ایک انصاف کا ترازو قائم کروں گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کل قیامت کے دن کسی نفس پر، کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ذرہ برابر سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی انسان، کوئی آدمی ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر نیک عمل کیا ہوگا، برا عمل کیا ہوگا، آتَيْنَا بِهَا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ میں اس کو سامنے لے کر اس کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ میں ایسے کرنے میں بڑا ہی آسان ہے میرے لیے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد حشر کے میدان میں ہمارے سامنے ایک انصاف کا ترازو، ایک انصاف کا وزن داڑھی قائم کرے گا، اور ناپا جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا سا نیکی کیا تھا دنیا کے اندر، کون کتنا برا کا کام کیا تھا۔ اس دن نیکی اور بری کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بکری، اگر سینگ والا بکری اگر بے سینگ والے بکری کو ایک بار مارا ہو، وہ بے سینگ والا بکری سینگ والے بکری سے قیامت کے دن بدلہ لے گا۔ صحیح مسلم اٹھائیے حدیث نمبر 6580 کے اندر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم سارے جتنے لوگ ہیں کل قیامت کے دن ہر ایک انسان کے حقوق کو ادا کرو گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دکان میں، چائے والے دکان میں، کسی بھی دکان میں ہو، اگر آپ کا 1 روپیہ بھی دھار ہے، 1 روپیہ بھی قرض ہے، تو کل قیامت کے دن آپ کو اور ہم کو ان ادا کرنا پڑے گا اس 1 روپیہ کو کل قیامت کے دن۔ اگر آپ دنیا میں کسی انسان کو دھوکہ دے کر کے رکھ دیا ہو، 1 روپیہ ہی نہیں ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقاد للشاة الجلحاء، اگر کوئی سینگ والا بکری، اگر بغیر سینگ والے بکری کو مارا ہو، من الشاة القرناء، تو بغیر سینگ والے بکری، اس سینگ والے بکری سے کل قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا۔ یہ جانوروں کا حال ہے کہ ایک بار اگر سینگ سے ایسا مار دیا ہو بغیر سینگ والے بکری کو، تو وہ بھی اس سینگ والے بکری کو کان میں پکڑ کر کے اس کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اور حاضر کرے گا اور کہے گا اللہ تو نے اس کو دنیا کے اندر سینگ دار بنایا تھا
था, मैं बे सींग था, ये सींग वाला बकरी ने फिर दुनिया में मुझे एक बार मारा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मैं उसको सींग दे दूंगा, और वो बगैर सींग वाले बकरी को जब सींग दे दिया जाएगा वो सींग वाला बकरी सींग वाले बकरी को मारेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने का मतलब ये है कि कल क़यामत के दिन किसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, बल्कि इंसाफ का तराजू कायम करेगा। आइए देखते हैं कि जब इंसाफ का तराजू कायम कर देगा, ना देगा, तब क्या होगा। आप लोग मगरिब के वक्त नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब एक सूरा पढ़ते हैं, अल क़ारियातु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौमा यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनु जिबालु कल इहनिल मनफूस व अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु। इन आयतों पर गौर करो। व अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिस इंसान का तराजू का पल्ला भारी होगा, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिस इंसान का नेकी का पल्ला भारी होगा, गुनाह का पल्ला हल्का होगा, फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, तो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेगा, बल्कि वो जन्नत में रहेगा। कौन? जिसका नेकी का पल्ला, नेकी का वजनदारी जिसका भारी होगा और गुनाह का हल्का होगा, वो शख्स क्या करेगा? फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, बल्कि वो जन्नत में ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेगा, बल्कि वो जन्नत में रहेगा। लेकिन जिसका गुनाह का पल्ला भारी होगा और नेकी का पल्ला हल्का होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत के अंदर फरमा रहा है, इसी सूरा के अंदर, वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिस इंसान का गुनाह का पल्ला भारी होगा, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिस इंसान का गुनाह का पल्ला भारी होगा और नेकी का पल्ला हल्का होगा, फ़हुम हाविया, तो वो जहन्नमी हो जाएगा, वो जहन्नम में चला जाएगा। गौर करने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो उम्मुहु, और उम्मुहु से मुराद है दिमाग, यानी वो सर के बल वो जहन्नम में जाएगा। ऐसे ही पैदल चल के नहीं जाएगा, बल्कि सर को नीचे करके घसीटता हुआ वो जहन्नम में, उनका जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मामूली सी बात है कि किसी के घर में कुआं होगा, कुआं, अगर किसी के घर में 10 फरमा, 12 फरमा, 14 फरमा कुआं है, अगर आप उसके अंदर जा करके अगर 4 से 5 घंटा अगर रह नहीं पाएंगे तो उस जहन्नम में कैसे रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस की रावी, ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तमाम सहाबा बैठे हुए थे कि अचानक एक धमकी की आवाज आई, धम करके। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आवाज कैसी है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह और आप बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो धम की आवाज आज से लेकर 70 साल पहले एक पत्थर जहन्नम में छोड़ा गया था, वो जहन्नम में आज जाकर के सबसे नीचे दर्जे में गया है। 70 साल, जरा गौर करें कि जहन्नम कितनी गहराई में होगा, क्या हम जा सकेंगे उस जहन्नम में? तो अगर जिसका गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा और नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा तो वो जहन्नमी हो जाएगा, और वो सर के बल वो जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला नहीं कह रहा है कि उसका तो नेकी होगा लेकिन कम नेकी होगा, कम, और गुनाह ज्यादा होगा। जैसे हम और आप नमाज कम पढ़ते हैं, गुनाह ज्यादा करते हैं, या तो नमाज पढ़ते ही नहीं है और गुनाह ज्यादा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन और दूसरा मखलूक पैदा करके जहन्नम में नहीं डालेगा, बल्कि हमें और आपको डालेगा। हम ही वो नाफरमानी है जो हम दिन और रात नाफरमानी करते हैं, नमाज से गाफिल, हर नेक को अमल से बातिल रखते हैं और दूर रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा मखलूक, दूसरा इंसान पैदा करके जहन्नम में डालेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि फरमा दिया है जिसका नमाए अमाल, जिसका नेकी का पल्ला कम होगा, कम नमाज पढ़ता था,
कम काम क्या करता था और गुनाह ज्यादा करता था, वो जाएगा हाविया में। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वमा अदराका मा हिया, और तुम्हें क्या पता कि हाविया क्या चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है नारुन हामिया, वो सख्त तेज हरारत वाली आग है, वो शोरा मारने वाली और घसीटता हुआ जलता हुआ वो झुलसता हुआ आग है। ये एक दो आयत नहीं बल्कि कुरान पढ़ डालिए, मुताबिद जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिसका नेकी का पल्ला भारी होगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकी का पल्ला हल्का होगा, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैंने खुतबा मसमा के बाद एक आयत पढ़ा था सूरह अल-मुमिनून के अंदर, आयत नंबर 101 से लेकर के 104 तक आप देख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है फइदा नुफिक़ फ़िस्सूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फइदा नुफिक़ फ़िस्सूर, कि जब इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, सूर एक बांसुरी की तरह एक सूर होंगे, और वो सूर इतना खतरनाक आवाज निकलेंगे कि सारे के सारे लोग 3 मरतबा सूर फूक जाए। पहले मरतबा सारे के सारे इंसान मर जाएंगे, दूसरे बार सारे के सारे इंसान जब सूर फूका जाएगा तो उठ करके खड़े हो जाएंगे। और कैसे खड़े होंगे? नंगे बदन, नंगे पैर, पूरा तन गुरला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फइदा नुफिक़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन यतसाअलून, कि जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे तो कोई हसब नसब, रिश्तेदार, परिवार सब टूट जाएगा। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। वइज़ा नुफ़िक़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन यतसाअलून, रिश्ते तो टूटेंगे, वला यतसाअलून, और कोई पूछेगा भी नहीं, कोई पुरसाले हाल भी नहीं होगा। हम लोग दुनिया में आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और पूछते हैं, सलाम करते हैं, और कैसे हैं, खैरियत से हैं, अच्छे हैं, ये सब पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब सूर फूंक देगा इसराफील अलैहिस्सलाम तो वला यतसाअलून, कोई सवाल करने वाला भी नहीं होगा। एक बात याद कीजिए, जिसके खातिर हम दुनिया में नमाज को भूल बैठते हैं, जन्नत को भूल बैठते हैं, जहन्नम को भूल बैठते हैं, किसके लिए? अपने औलाद के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने घर वालों के लिए। हम अपने घरों को अच्छे तरीके से संभालते हैं, देखभाल करते हैं, एक मकान को 2 मकान बनाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क्या कह रहा है कि तुम जिसके लिए कर रहे हो दुनिया के अंदर, जिस बच्चे के लिए कर रहे हो, जिस औलाद के लिए कर रहे हो, यही औलाद कल क़यामत के दिन जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे तो कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। यहाँ तक नहीं बल्कि अम्मा पारा के अंदर अबसा व तवल्ला के अंदर आप देख सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है यवद्दुल मुजरिमू लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व अख़ी व फ़सीलतिही अल्लती तुवी। इस सूरह मारिज के अंदर आप देख सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी, यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ी, हर इंसान ये तमन्ना करेगा ए अल्लाह मेरे बाप को ले ले लेकिन मुझे छोड़ दे, वो साहिबतिही, मेरी बीवी को पकड़ ले लेकिन मुझे छोड़ दे, वो फसीलतिही अल्लती तुवी, मेरे पूरे खानदान को ले ले लेकिन ये अल्लाह तू मुझे छोड़ दे। जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है और कुरान में लिखा है। मैं आपके सामने तर्जमा करके जा रहा हूँ। तर्जमा अरबी लफ्ज़ है, आप तर्जमा नहीं कर पाएंगे। तर्जमा ये है यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी व फ़सीलतिही अल्लती तुवी। कल क़यामत के दिन बाप कहेगा अल्लाह ये मेरा बेटा है, इसको तू पकड़ ले, ये मेरी बेटी है, इसको तू पकड़ ले, ये मेरी बीवी है, इसको तू पकड़ ले, ये मेरे पूरे खानदान वाले हैं, मेरे परिवारों वाले हैं, इन सब सारे लोगों को पकड़ ले, ये मेरे पूरे कबीले वाले हैं, पूरे गांव वाले हैं, इसको पकड़ ले लेकिन मुझे छोड़ो। हर कुछ दाव पर लगा देने के लिए तैयार हो गए। यहीं तक नहीं,
यवद्दुल मुजरिमू लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही allती तुरी। और दूसरी जगह फरमा रहा है यौमा यद्दुल लज़ी यौम यफिरुल मर्'उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। सूरह मारिज के अंदर ये है कि हर इंसान हर कोई दाव पर लगा देगा कि तू उसको ले ले लेकिन मुझे छोड़ दे। और अबसा व तवल्ला के अंदर है कि हर बेटा हर औलाद ये तमन्ना करेगा ये मेरी माँ है, उसको छोड़कर देख करके भागेगा। बाप है बाप को देख करके भागेगा और भागेगा और कहेगा कि अल्लाह उसको छोड़ लेकिन मुझे। ये क़यामत के दिन मंजर होगा कब जब इसराफील अलैहिस्सलाम को। अब आगे वाली आयत देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वला यतसाअलून, कोई सवाल करने वाला भी नहीं होगा। फिर फरमा रहा है फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, और जिस इंसान का नेकी का पल्ला भारी होगा। यहाँ भी वही बात कि जिस इंसान का नेकी का पल्ला भारी होगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब हमारे नमाए अमाल जब हमारे हमको दिया जाएगा तब गुनहगारों का हाल क्या होगा। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वउतियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही, जब गुनहगार इंसान को जब उनका नामाए अमाल दिया जाएगा तो जो मुजरिम लोग होगा, जो पापी लोग होंगे, जो गुनहगार लोग होंगे, वो थर थर कांपेंगे, वो थर्रा जाएंगे, वो कांपेंगे और कहेंगे मा लिहाज़ल किताब, ये रजिस्टर कैसा है, ये नामाए अमाल कैसा है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्लाहा, हमने दुनिया में छोटा सा गुनाह किया था वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है और बड़ा सा गुनाह किया था वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ऐसा कि दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा यौमइज़िन यतसा। मोहतरम सामीन, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कहते जा रहा है कि अगर तुमने दुनिया के अंदर फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर कोई इंसान जर्रा बराबर भी दुनिया से के अंदर गुनाह का काम किया होगा वो भी उसको सामने लेके चले आएगा, और जो भलाई का दुनिया में अंदर जर्रा बराबर भी भलाई का काम किया होगा वो भी उसको सामने लेकर चला आएगा। तो जब गुनहगारों का नामाए अमाल दिया जाएगा तो वो थर थर कांपने लगेंगे और कहेंगे ये कौन सी किताब है, ये जो दुनिया में छोटा सा गुनाह किया था वो भी इसके अंदर दर्ज है, जो हमने दुनिया के अंदर बड़ा सा गुनाह किया था वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, और जिस इंसान का नेकी का पल्ला भारी होगा और गुनाह का पल्ला हल्का हो जाएगा फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो ऐसे इंसान कामयाब हो जाएगा। कौन इंसान कामयाब होगा? जिसका नामाए अमाल जिसका नेकी का पल्ला भारी होगा और गुनाह का पल्ला हल्का होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिस इंसान का गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा और नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिस इंसान का गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा और नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, तो अपने आप जलील हो जाएगा, अपने आप रिस्वा हो जाएगा। वहुम फीहा खालिदून, और उस जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए वो जहन्नम में चले जाएगा। और जिसका गुनाह का पल्ला भारी होगा और नेकी का पल्ला हल्का। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इसी आयत के अंदर आगे वाली आयत में सिर्फ वो जहन्नम में जाने के बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है तलफ़हु वुजूहहुम नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उस इंसान के चेहरे को, उनकी खूबसूरती को, जो दुनिया के अंदर ऐश व इशरत के साथ रहा करता था,
जो दुनिया के अंदर बड़ा ही घमंड में रहा करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा कि उसको जहन्नम में जाने के बाद उसको यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। तलफउ वजूहहुमुन नार, तलफउ वजूहहुमुन नार, बल्कि उनके चेहरे को जहन्नम झुलसा देगी, झुलसा देगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये रवायत करते हैं कि तलफउ से मुराद उनकी चेहरे को फ्राई कर दे। फ्राई जानते हैं, हम और आप अंडे खाते हैं, अंडे को किस तरीके से फ्राई करते हैं कटोरा में, गिलास में, उस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन करा जब उस इंसान को जहन्नम में डालेंगे जिसका गुनाह का पल्ला भारी होगा और नेकी का पल्ला हल्का होगा, तो उनके चेहरे को झिझोड़ देंगे, उनके चेहरे को फ्राई कर देंगे। और वो कैसा लगेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा उसी आयत के अंदर, वहुम फीहा खालिदून, और वो इंसान बदशक्ल हो जाएगा। एक मिसाल दे देता हूँ, आप जानवर देखे होंगे, गाय जब ज़बह करते हैं और ज़बह करने के बाद उसके चमड़ी को छोड़ करके नहाया जाता है, तो उसके सर, जब सर के गोश्त को निकाल दिया जाता है और सिर्फ उस सर रहता है, सर सिर्फ हड्डी, किस तरीके से डरावना लगता है, कितना भयानक लगता है। इसी का तर्जुमा ये है, तलफउ वजूहहुमुन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान के जो जहन्नम में जाएगा उनके चेहरे को इस गाय की तरह कर देगा, उनकी चेहरे को फ्राई कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वहुम फीहा कालिहून, जब वो ऐसा कर देगा उनके चेहरे को, तो वहुम फीहा कालिहून, तो वो बदशक्ल नजर आएगा, वो बहुत ही खराब नजर आएगा। जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा उसी आयत के अंदर, फिर फरिश्ते सवाल करेंगे, पूछेंगे, अलम क्या तुम्हारे पास कोई नहीं आया था नजीर, डराने वाला? क्या तुम्हारे पास दुनिया के अंदर कोई नहीं गया था डराने वाला, जो तुमको कहे कि अल्लाह है, ये रसूल है, तुमको नमाज पढ़ना होगा, तुम्हें अच्छाई का काम करना होगा, तुम्हें भलाई का हुक्म देना होगा, बुराई से रोकना होगा? क्या तुम्हें कोई दुनिया में बताने वाला नहीं गया था? तो सारे के सारे जहन्नमी लोग कहेंगे, क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, हर जहन्नमी उस दिन ये कहेगा, ए अल्लाह, हमारे पास तो डराने वाला गया था, हमारे पास तो मौलवी पहुंचा था, हमारे पास तो गया था डराने वाला कि तुम नमाज पढ़ो, भलाई का काम करो, जहन्नम कायम होगा, कयामत होगा, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ता है, सारे कुछ है, कब्र है, हमको हमारे पास डराने वाला आया था, ग़लबत अलैना शिक़वतुना, लेकिन हमारे पास तो शैतान हावी हो गया था, हमारे पास तो शैतान आ गया था, हम तो बहकावे में रह गया, हम तो नमाज नहीं पढ़ता था। ये कौन कहेगा? जहन्नमी कहेंगे, तो जहन्नम में जाएगा। वही जहन्नम कहेगा, वही जहन्नमी कहेगा, ए अल्लाह रब्बना अखरिजना मिनहा, ए अल्लाह मुझे इस जहन्नम से निकाल दे, इतनी गर्मी, इतनी बर्दाश्त से बाहर, इतनी शदीद। जब प्यास लगेंगे किनको? जहन्नमी को। तो दुनिया के अंदर घोड़ा देखेंगे, घोड़ा, किसी का घोड़ा होता है, वो पीप निकलता है, पीप। जब जहन्नमी पीने के लिए पानी मांगेंगे तो उसी पीप को पिलाया जाएगा और वो पिएगा, क्योंकि प्यासा है, भूख के मारे प्यासा है, वो पिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इंसान उस पीप को पिएगा। जरा गौर करिए वो जहन्नम कितना खतरनाक है। यहीं तक बस नहीं, बल्कि आगे वाली आयत में उसी अल-मुमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब इंसान कहेगा, ए अल्लाह मुझे इस जहन्नम से निकाल दे, इतना खतरनाक, इतना भयानक सजा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो अल्लाह कहेगा, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लमून, ए इंसान, ए जहन्नमी, तुम इसी पर पड़े रहो, इख्सऊ, तुम इसी पर रहो, वला तुकल्लमून, और तुम मुझसे बात भी मत करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन जहन्नमी से बात भी नहीं करेगा, तो उसी पर रहने होगा। जरा गौर करें कि वो जहन्नम कितना खतरनाक है। आइए देखते हैं कि जिसका नामाया माल दाएं हाथ में दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया सूरह
اسلام کے اندر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس انسان کا نمایاں مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس انسان کا رجسٹر، اس کا دنیا میں تمام کرتوتوں کا رجسٹر، ایک کھاتا نمایاں اعمال جب اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یحاسب حسابا یسیرا، تو جس انسان کا نمایاں مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یحاسب حسابا یسیرا، تو ان سے بڑا ہی آسان اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اور سوال کرنے کے بعد وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوش ہو کر کے اپنے پریواروں کی طرف لوٹ جائے گا، اپنے اہل کے والے کی طرف چلے جائیں گے، اپنے رشتہ دار کی طرف چلے جائیں گے۔ اور لیکن جس انسان کا نمایاں مال دائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس انسان کا نمایاں مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایسے نہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وراء ظہرہ کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ کو موڑ کر کے دیا جائے گا۔ کن کو؟ جو برا لوگ ہیں ان کو وراء ظہرہ، جب ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے نمایاں مال ان کے رجسٹر کیا جائے گا ہاتھ کو موڑ کر کے، تو وہ انسان وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ چلائے گا، چیخے گا، اے اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، مجھے دنیا ہی میں کیوں نہ موت آ گیا تھا، پھر مجھے دنیا میں دوبارہ پھر مجھے زندہ نہ کیا گیا ہوتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا، کاش کاش۔ کون کہے گا؟ جس کا نمایاں مال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یہ انسان چلائے گا، چیخے گا اور اسے موت پکارے گا کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ انسانی کہنے کا مطلب بھول ہے، جب ہمارے نمایاں مال جب ہمارے سامنے ہو جائے گا، جو گنہگار انسان ہوگا، جو پاپی انسان ہوگا، وہ تھر تھر کانپنے لگیں گے، تھرلانے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہائے یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سا نمایاں مال ہے۔ دنیا میں چھوٹا سا بھی جو نیکی کا کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر درج ہے، اور بڑا سا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جب ہمارے نمایاں مال سامنے آ جائے گا تب ہماری حساب کام کرتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائیں، ہم نے صالح کرنے والا بنائیں، آمین۔ اے اللہ جو 5 وقت کی نماز ابھی نہیں پڑھتے اللہ ان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ جو دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔